ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر سے۔ پاکستان کسی صورت انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف سرنڈر نہیں کرے گا، ہم لڑیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں صحافی دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خودکش حملہ آور جہنم کے کتے ہیں، کسی کو خوش فہمی ہے کہ کسی طاقت کے جانے سے ان کو تقویت ملی تو وہ دور کر دیں گے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم اپنے شہداء اور ان کی حرمت اور ان کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بٹگرام میں پاک فوج نے ریسکیو اداروں کی مدد سے پھنسے ہوئے بچوں کو ریسکیو کیا، اس پر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اپنے گھر کو اپنے انداز میں چلائیں گے۔ یہ جو ریسکیو آپریشن کی کامیابی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فیاض الحسن چوہان کا نعرہ۔ ترجمان آئی پی پی نے کہا کہ فوج کی محنت اور عوام کے تعاون سے قیمتی جانیں بچ گئیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے علائے آپریشن پر بھی منفی کردار ادا کیا۔ دشمن طاقتیں عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بٹگرام کیبل کار ریسکیو آپریشن مکمل ہونے پر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بچوں سمیت تمام 8 لوگوں کی زندگی محفوظ رہی۔ اسپیشل سروسز گروپ کی تمام ٹیم، افواج پاکستان اور مقامی انتظامیہ کا قوم شکریہ ادا کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جس طرح کسی نقصان کے بغیر یہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا، آپ شاباش کے مستحق ہیں۔ بچوں کے والدین کو خاص طور پر مبارکباد دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد رکھے۔ ویلکم بیک۔ پرامن انتقال اقتدار اولین ترجیح ہے، کوشش ہے انتقال اقتدار پرامن انداز میں ہو، نظام کوئی جھٹکا نہ لگے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں کاروباری شخصیات سے گفتگو میں کہا کہ نگراں حکومت شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہی ہے، نئے پارلیمان کی وجود میں آنے تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تاجر برادری کے تعاون کی ضرورت ہے، جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ایک تو ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت محدود ہے۔ یہ الیکشن میں اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ہے، جس میں ڈے ٹو ڈے گورننس کے ایشو کو مانیٹر کرتے ہوئے جو ہمارے قومی اور بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسے آئینی اور قانونی نظام کا تسلسل رکھتے ہوئے نئے پارلیمان کے وجود تک اپنی محدود ذمہ داریاں نبھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈسکنٹینیوٹی اس میں نہ آئے اور نہ خواص کو، نظام کو کوئی جالٹ نہ ملے۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا 3 جولائی کو کی گئی نیب ترامیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہیں۔ نیب قانون 2001 تک ڈیکورینین تھا۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3 جولائی کو کی گئی نیب ترامیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہے۔ نیب قانون 2001 تک ڈریکونین قانون تھا۔ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا جس میں گرفتاری نہیں ہو سکی۔ ملزم کو گرفتاری سے پہلے مطلع کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ نیب گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ احمد فواد سے مزید جان لیتے ہیں۔ احمد، اپڈیٹ کی جگہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے جو کیس کی سماعت ہے وہ کی ہے۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3 جولائی کو کی گئی نیب ترامیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہے۔ نیب قانون 2001 تک ڈریکونین قانون تھا۔ نیب گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں مثبت رجحان، مارکیٹ 83 پوائنٹس کے اضافے سے 47,501 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 49 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔
ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 306 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 के करीब पहुंच गया है। 49 पैसे के इजाफे से इस वक्त डॉलर 299 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ था। इसी तरह ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा रेट्स के मुताबिक डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं दूसरी जानिब एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मनफी रुझान देखा जा रहा है। 187 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 47,230 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 30 पॉइंट्स की कमी से 41,417 पर बंद हुई थी। कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोकने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। अहमद फवाद से हमारा रब्ता हुआ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अहमद फवाद, इस समात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्त है वो दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनको चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात की सुनवाई से जो है वो रोका जाए। इसके अलावा दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनके जो तमाम मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या तो लाहौर शिफ्ट कर दिए जाएं या तो पेशावर हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्त है वो आर्टिकल 186A के तहत जो है वो दायर की गई है और ये जो दरखास्त है वो एडवोकेट लतीफ़ खोसा की वसातत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसके अलावा दरखास्त में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तासुब के हवाले से जो ठोस शवाहिद हैं वो भी मौजूद हैं और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखने की हर मुमकिन जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। इसके अलावा दरखास्त में ये भी कहा गया है कि उन्हें जो है वो उनके कानूनी हक से भी महरूम रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर अवाम का इजहार ख्याल। अवाम ने सदर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। अवाम का कहना है कि जिस सदर को अपना नहीं पता तो मुल्क के बारे में क्या पता होगा। सदर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सदर को इस्तीफा देना चाहिए। उसको पता ही नहीं है मेरा अमला क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो सदर है इसको अपना चीज़ का पता नहीं है, इसका सदर का पता नहीं है, ये मुल्क का कैसा हाल का या इस्तीफा इससे बहुत पहले दे देना चाहिए था। अभी तो ये बस ऐसे ही चिपका हुआ है सीट के ऊपर। इस तरह पहले सदरों ने किया है, ये भी अपनी पार्टी को फायदा दे रहे हैं। वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बात करना और अपने ज़ाती अकाउंट से एक ट्वीट देना कि जी मैंने सिग्नेचर नहीं किया, ये सारा जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जब मंजूर हो गया, अभी उसका बोलना फजूल है। 3 दिन बाद उनको याद आ रहा है मैं यानी कि ना मैंने तो ये साइन ही नहीं की, उसी वक्त उनको रिएक्शन करना था चाहिए था इसमें। अगर इसने दस्तखत नहीं किया है तो इससे पहले इसको एक बयान देना चाहिए। खामोशी नीम रजामंदी वाली बात है, तो उन्होंने खामोशी अख्तियार किया, इसका मतलब रजामंद है। हर चीज दूसरों में फेंक रहे हैं, ये आज अपने ही मुलाजमों को के ऊपर बात को फेंक रहे हैं जी कि ये मैंने साइन नहीं किए। ये कैसे हमारे सदर पाकिस्तान है। वो दरख्वास्त दे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ किया जाए। जब इस्तीफा देके इसको फारिग किया जाए, ये मेंटल अपसेट है। वो बिल को अप्रूव करें, मुझे लग रहा है कि ये बिल एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि वो कह रहे हैं हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो बड़ी गलत बात है। इस्तीफा वो होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा गलती ना करे ना, उसको फौरी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। अवाम को आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए ना इल्जाम उन पे फेंक रहे हैं। सदर साहब झूठ बोल रहे होंगे, उनको मुसाफी हो जाना चाहिए। बस इसको सजा मिलना चाहिए, दे देना चाहिए। जारी बात है, फिर आपके इख्तियार में है क्या जो आपकी जारी साइन हो रहे हैं, तो आप सदर तो नहीं है। फिर कितनी बच्चेगाना बातें करते जी मैंने, और 10 दिन के बाद कहते हैं जी मैंने साइन नहीं किया तो वो किया था।
तो ये बिल्कुल ढोंग बेबुनियाद बातें हैं। झूठ बोल रहा है, सब कुछ उसको पता था। यू टर्न लेना अच्छी बात नहीं है, ये तो आवाम को सरासर धोखे में रखने वाली बात है। बजाय इसके कि इस तरह की अपॉलोजेटिक किस्म की ट्वीट करने से बेहतर था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये तो गलत बात किया है, जब बिल मंजूर किया है, बिल बोलता ही नहीं किया तो मालूमदार की नाजायज बात है। जानबूझ के ऐसे वैसे बोल रहा है ना, मुझे पता नहीं था, ये नहीं था, वो सारे गेम चला रहे हैं। पता है प्रेसिडेंट साहब है, उनको पता ही नहीं चलता वो किस मनसब पे किस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, कि क्या नॉनसेंस हरकतें कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें। इस्तीफा देना चाहिए, फिर दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर हो और इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेट हो, इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही के खिलाफ नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोनस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। मोनस इलाही ने अपने फ्रंटमैनों असमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स लीं। असमत हयात और सुहेल असगर मोनस इलाही के फ्रंटमैन थे। मोनस इलाही ने 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से जायद अराजी खरीदी। अराजी किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई। मोनस इलाही ने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर रिश्वत वसूल की। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही के खिलाफ नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोनस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। मोनस इलाही ने अपने फ्रंटमैनों अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। बलूचिस्तान की आवाम के लिए पाक फौज की खिदमात का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पाक फौज के डॉक्टर्स ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया। मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात और राशन भी फराहम किया। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से कायम SOS चिल्ड्रन में 146 यतीम बच्चे बशमूल 16 माए मुकीम हैं, जो कि इन बच्चों की देखभाल कर रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।